हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कोड 503 को डिस्कस करेंगे। उसके लेसन नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें हम यूज़ ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट फॉर टीचिंग इंग्लिश। जो हम लिटरेरी टेक्स्ट को यूज़ करते हैं फॉर टीचिंग पर्पज़ के लिए, वो क्या होता है उसको आज हम डिस्कस है। टीचिंग लिटरेचर फॉर लैंग्वेज लर्निंग। हम जो लिटरेचर पढ़ाते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए, वो क्या होता है। The employment of English literature in the teaching language is very old. The work literature that bring delight to reader of the language should be naturally suitable material in the teaching of language itself. The use of literature helps promoting the teaching of academic or specific occupation related to goals. Literature can help develop overall the reading proficiency. In doing so, it will certainly contribute to the English for academic purpose and English for specific purpose goals. It empowers students to interact with the text by understanding the language and comprehending the concepts presented. The literature is an effective way for bending the learner attention besides achieving the learning objectives. Literary texts make the teaching learning process a fun and attractive experience for both teachers and students. The arguments again using English and teaching English begin when new emphasis were placed on learning communicative language. Globalization and international trade has required the creation of special language areas such as EAP, ESP. The use of basic classical texts in such situations is quite impossible, since the aim of these courses is to develop the academic and professional ability of individuals rather than enable them to appreciate literary works. Finally, the literature of every language is situated in cultural milieu of the society that speak the particular language. Thus, such literary texts will contain complexity of concepts which would burden. मतलब इसमें कहना ये चाह रहा है कि जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है या जो लिटरेचर होता है वो लैंग्वेज को फ़न की शेप में प्रेजेंट करता है, उसमें नई नई चीज़ों को डेवलप करता है, नई नई चीज़ों को इनोवेशन होती है। तो इसमें काफ़ी एकेडमिक पर्पज़ के लिए भी हम लिटरेचर को यूज़ करते हैं, ख़ास मकसद के लिए भी यूज़ करते हैं। तो लिटरेचर का एक फ़ायदा नहीं है, ये मल्टीपल इसके एडवांटेजेस हैं जिसको हम अपनी लाइफ में, अपनी राइटिंग में और लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। रीज़न टू अप्लाई लिटरेचर टू इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश स्किल लर्निंग teaching. Firstly, literature consider value of authentic material for it is not fashioned for the specific teaching of language. In this perspective, purpose is the grand intentional use and thus responsible making meaningful student. Another important characteristic of literature is that no matter how old it is, its meaning does not remain static. The main point is that students, based on wide range of diversity of background, knowledge, and culture, build up different interpretations. इसमें ये बताना चाह रहा है कि फर्स्टली जो हम लिटरेचर को ऑथेंटिक मटेरियल कंसीडर करते थे, स्पेसिफिक टीचिंग के लिए यूज़ करते थे, तो प्रोफेसर ने इसके बारे में आइडिया दिया कि लिटरेचर की खसूसियत या क्वालिटी ये है कि स्टैटिक नहीं रहता, सेम नहीं रहता। वक्त के साथ इसके मीनिंग, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसका पॉइंट ऑफ व्यू वक्त के साथ चेंज होता रहता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है कि स्टैटिक नहीं है, राउंड है और वक्तन फ़क्तन चेंज रहता है। ये लिटरेचर की खसूसियत है। सेकेंडली, लिटरेचर ऑफर कल्चर एंड लैंग्वेज enrichment. The capture the language enrichment that literary text provide is necessary to make an healthy human being approach to overcoming a new problem or to acquiring any language. तो ये न्यू कल्चर को डेवलप करता है, उसकी साइकोलॉजी और उसके बारे में इम्पोर्टेंस देता है। जब हम वैसे भी पढ़ते हैं लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ लाइफ सोसाइटी का, लिटरेचर मिरर करता है लाइफ और सोसाइटी। फाइनली, लिटरेरी टेक्स्ट कैन प्रमोट अ डीपर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट फॉर बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स. Contrary to analytical characteristics of conventional learning through literature, students have the opportunity to emotionally participate in the process of learning a new language. Give 6 key reasons. मतलब ये ना सिर्फ पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के लिए फ़ायदा मंद है, बल्कि इसके और भी 6 रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें
क्रिएट करता है। प्रोवाइड मीनिंगफुल कंटेक्स्ट, इन्वॉल्व प्रोफाउंड नीज वोकैबुलरी, मतलब ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग सूटेबल लिटरेरी टेक्स्ट, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कि सूटेबल लिटरेरी टेक्स्ट को सर्च करें, उसके बारे में आइडिया लें। केयरफुल सिलेक्शन लिटरेरी टेक्स्ट बीइंग यूज्ड शुड बी promote attention using word for literature that contain large number of outdated words in hardly going to benefit. Selecting literary works that are relatively easy to read is the key to using literature. However, textual matter that is oversimplified to easy poses on challenges to language. This will turn result. इसमें भी ये कहना चाह रहा है कि क्राइटेरिया ये स्टूडेंट्स और टीचर पे डिपेंड करता है और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, डिफरेंट लिटरेचर के लिहाज से ये डिफरेंट होता है। लिटरेचर एंड द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, लिटरेचर टीचिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल में क्या रोल अदा करता है? स्किल्स में राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इसमें लिटरेचर क्या रोल अदा करता है? 4 skills associated with the English language teaching, reading, writing, listening and speaking all are helpful for the employment of literature in the language classroom. Pouvet argues that literature will increase all language skills because literature will extend linguistic knowledge. इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो लिटरेचर है ना सिर्फ एक स्किल को डेवलप करता है बल्कि इसकी वजह से सारी स्किल्स में इजाफा होता है। रीडिंग में कैसे इजाफा होता है? रीडिंग स्किल की वजह से स्टूडेंट्स में रीडिंग टेक्स्ट्स की एबिलिटीज क्रिएट होती है। स्टूडेंट्स को टीचर्स स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि उनको टेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट के बारे में आइडिया लेना चाहिए। उसके बाद लिटरेचर जो है राइटिंग में क्या इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है? राइटिंग में डेफिनेटली जब आप लिखते हैं और टेक्स्ट को मद्देनज़र रखते हुए लिखते हैं, इसलिए राइटिंग में भी लिटरेचर बेनिफिशियल है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के लिए भी रिकॉर्डिंग वीडियोस, रीडिंग लिटरेचर और प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। ड्रामा के लिए भी लिटरेचर बहुत ज़रूरी है। ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए भी लिटरेचर बहुत ज़रूरी है। मतलब benefits of different genres of literature. Since literature are written with the express purpose of language teaching in mind, it generally contain a variety of language as well subject names. Benefits of using poetry or language teaching, मतलब जब हम पोइट्री को टीचिंग में यूज़ करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदा मंद है? It's a metaphor that is most important in connection with learning and poetry. According to Sarek, the benefit of poetry are these are the points जो पोइट्री में हेल्प करता है लिटरेचर। यूज़ शॉर्ट स्टोरी टू लैंग्वेज टीचिंग, जब आप लैंग्वेज टीचिंग में शॉर्ट स्टोरीज़ का अमल दखल होता है या शॉर्ट स्टोरी को यूज़ करते हैं तो ये भी बहुत की रोल अदा करते हैं। उसके बाद यूज़ नॉवेल्स, नॉवेल्स भी जनरस में आता है। ये भी काफ़ी क्रिएटिविटी पैदा करते हैं, ये भी लिटरेचर का ही पार्ट है। उसके बाद पाकिस्तानी इंग्लिश फंक्शनल लैंग्वेज क्लासरूम एंड लिटरेचर, द करिकुलम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट अ प्राइमरी सेकेंडरी लेवल टेरिटरी लेवल इन पाकिस्तान इज कंपोज ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। इसमें डिफरेंट राइटर्स हैं, मतलब पंजाब में और डिफरेंट एरिया में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन देते हैं क्लासरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हों। और ये डिफरेंट जो राइटर्स हैं पाकिस्तानी राइटर्स, उनने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को मेंशन किया है कि लिटरेचर या लर्निंग के लिए ये इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है। द स्टडी सजेस्ट learner need to improve language skill as well as need to improve grammar and introduce literature based texts that are representative of world literature as well as Pakistan literature. There is a need to include culture components in the syllabus. तो एंड पे उसने इस पैराग्राफ में बता दिया है कि लर्नर को चाहिए कि वो अपनी लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करे और लिटरेचर को रिप्रेजेंट करे
और अगर वो चाहता है कि एक अच्छा लिटरेचर पढ़े या अच्छे लिटरेचर की खातिर का उसका इजाफ़ा उसके माइंड में, उसके नॉलेज में, उसके स्किल्स में, तो उसको ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहिए और लिटरेरी टेक्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और उसको डिफरेंट एराज में उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए और डिफरेंट जॉनराज में उसको अप्लाई करना चाहिए लिटरेरी टेक्स्ट को। तो आज के लेक्चर में हमने लेसन नंबर 31 को डिस्कस किया और इसमें बड़े मेन पॉइंट्स डिस्कस किए, जिसमें यूज़ ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट फॉर टीचिंग इंग्लिश, कि लिटरेरी टेक्स्ट को टीचिंग के लिए यूज़ करना, और लिटरेचर और लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है और लिटरेचर स्किल्स में किस हद तक इजाफ़ा करती है, उसके बारे में हमने स्टडी किया।